तो देहरादून की आर्किटेक्चर और इंटीरियर इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। और अगर बात करें हम कैफेज और रेस्टोरेंट्स की, तो देहरादून की कैफेज और रेस्टोरेंट्स की इंटीरियर्स वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं इस देश में। So welcome to this journey. Well, I am Saurav. And I am Divya, and I warmly welcome you all to the second episode of Architectural Appetite, powered by Delusion Interior Private Limited. We are on a mission to uncover the best and most scenic cafe interiors in Dehradun. And as part of this journey, we find ourselves at Cafe Lata, nestled along Rajpur Road. So today we are at Cafe Lata, the very famous cafe by the very famous personality Mr. Lokesh Ohri, renowned not just as the proprietor but also celebrated as an author, anthropologist, cultural activist and a beacon of kindness and compassion. First of all, welcome to the show. Thank you. Thank you for having us. Thank you so much, sir. And so I would start with a basic question to you. Like, can you please tell me something about Cafe Lata and what was the ideation behind this concept, the interior and everything? So to start with, the word Lata is a Pahari word, and Lata itself means a person who is Buddhu, who is the most Siddha person in the village. And sometimes also people think that he's an idiot. So our group does heritage walks, and especially we work with communities in the hills. तो बहुत गांव में हम लोग जाते हैं, बहुत कम्युनिटी से बातचीत करते हैं और उनके साथ इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं। तो what we propagate is something called slow tourism. कि अगर आप टूरिस्ट हैं और आप ट्रैवल करने का शौक है आपको, तो आप नेचर की पेस पे ट्रैवल करो, ना कि जो आपकी सिटी लाइफ है उसकी पेस पे ट्रैवल करो। तो पैदल चलो, गांव में जाओ, लोकल खाओ, लोकल लोगों से मिलो, उनके लाइफस्टाइल को देखो। इस तरह का हमारा एक पिच है लोगों के लिए। तो एक गांव में मैं गया और एक एल्डरली पर्सन थे, तो वो मेरे से पूछने लगे कि आप ये स्लो टूरिज्म में क्या करते हो। तो जब मैंने उनको समझाया तो बोले कि दुनिया तो जेट एज की तरफ जा रही है, 6G की तरफ जा रही है, तुम तो बिल्कुल लाटा वाला काम कर रहे हो। तो वहां से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि हम लोग इस कैफे का नाम कैफे लाटा रखें। और हमने एक बुक भी करी जिसका नाम है वॉकिंग विद लाटा। सो लाटा इज आवर एम्बलम, सो दिस इज द विलेज लाटा। और Cafe Lata is a community space. It's a space for people to come together. We do a lot of events here, like we do lectures, we do discussions, book readings, music. So can you please tell me something about the food? जैसे कि a portion of this cafe gives a vibe of some पहाड़ी sort of thing. So क्या मतलब food items में हम पहाड़ी सर्व करते हैं या फिर we have a mix of things from continental Italian and all? Yeah, so as I said, we work a lot with hill communities, और खासकर हम इको टूरिज्म की स्पेस में काम करते हैं। तो लेकिन फूड में हमारा एक्सपीरियंस यही रहा कि इफ यू ऑफर ओनली पहाड़ी फूड, then that will not work. Because today's youth, they want the newest flavors. They want Chinese. They want to try new flavors. And and they also want urban food. तो इसलिए हमने so we have the regular pastas and we have the regular momos and chow-meins and whatever, but a lot of these foods में हमने कुछ एक पहाड़ी टच भी दिया है। Like for instance, our most popular beverage is the Buranch Mojito. Yes. So we make it out of Buranch extract, not Buranch का जो squash आता है उससे नहीं बनाते। We source the extract, which has no preservatives, it has no color, nothing.
और तो वो हमारा बहुत पॉपुलर बेवरेज है। इस तरह से जैसे पास्ता भी है हमारा, तो हमारा एक लाटा पास्ता है, जो लाटा पास्ता कंटेन्स so it's a regular pasta, but it's also, it has jakia, it has local spices, the Pahadi touch. yeah. So we have a white sauce pasta, we have a red sauce pasta, and we have a lata pasta. जब हमने शुरू किया तो मेन मोटिव यही था that we will not compromise on the quality. Okay. But we wanted a lot of young people to come. We wanted this place to be buzzing. So we kept the prices low. But we also, thought that क्योंकि हमें भी शौक है कॉफी का, फूड का, तो we are also foodies. We love our coffee. So we have been trying. Like we have a coffee consultant. We have been trying beans from different places. We tried beans from Kerala. First, we tried the big companies that give us the coffee beans. तो फिर उन सबको हमने कंपेयर किया और उनके फ्लेवर्स देखे, उनकी रोस्टिंग देखी। सो इंटरेस्टिंगली जो कॉफी बीन का साइज होता है, उसका कलर होता है और रोस्ट करने पे उस पे उसकी जो शेप आती है, उसको भी लोग बड़ी केयरफुली स्टडी करते हैं। मुझे ये पता नहीं था, लेकिन जब हमने कंसल्टेंट को लिया तो ये सब चीजें हमको पता चली। एंड वी रियलाइज ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो कॉफी बीन आ रहा है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। Or so we have started using that, and people have also been saying that your coffee it tastes different now. Okay. So the market is actually loving it. Yeah. Yes. So talking more about the community portion of Cafe Latte. So I can see a board here that says Cafe Latte Studio. Yeah. Our studio is more about music. Okay. And we are trying to bring in a lot of local artists. तो हम लोग बाहर से भी कोई आर्टिस्ट आता है, बिकॉज आई डील अ लॉट विद आर्टिस्ट्स, वी डू फेस्टिवल्स एट डिफरेंट प्लेसेस। तो बहुत सारे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जब देहरादून आते तो मेरे से कनेक्ट करते हैं और तो हम कोशिश करते हैं इफ वी कैन अफोर्ड इट टू हैव दोस आर्टिस्ट परफॉर्म एट कैफे लाटा। सो एक तरीके से देहरादून में आजकल बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट भी उभर के आए हैं काफी, उनको भी मौका मिले इस कैफे लाटा स्टूडियो के माध्यम से, तो दैट वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी हियर। कंटिन्यूइंग टू दिस सीरीज, कैन यू प्लीज tell me something about the interior that you have picked for this community cafe? As I can see, there is a mixture of some classic photographs, some classic movie posters, some Pahadi touch is there. Yes. A barista is there in front of the stage. So what was the main motive behind the interior? So it's a mix and match thing. We talk to people a lot. When we talk about heritage, we also talk about recycling, reuse. So a lot of the material that you see here is repurposed. तो जब हमने कैफे बनाया तो कुछ भी नया नहीं खरीदा इंटीरियर्स के लिए। जैसे आप ये डोर्स देख रहे हैं, सब कबाड़ियों से खरीदे हुए डोर्स हैं। और इनफैक्ट जब कैफे बन रहा था तो देयर वाज दिस वन वेरी ब्यूटीफुल हाउस इन डोवालवाला व्हिच वाज बीइंग डिमोलिश्ड, ओल्ड हाउस। और उनके जो दरवाजे थे वो बड़ी मुश्किल से मैं उनके कॉन्ट्रैक्टर को हाथ जोड़ जोड़ के उनसे दरवाजे लेके आया। तो हमने अलग अलग घरों के दरवाजे लगाए और जो फर्नीचर है वो भी repurposed है। You can see some of the tables, they are also made out of doors. Doors, yes. So these are all old doors from houses of Dehradun. Yeah. I think it's a brilliant idea। जहाँ पे लोग, जैसे आपने बताया, वो घर डिमोलिश हो रहा था, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो या तो कबाड़ी में दे देते हैं या फिर जलाने के लिए यूज कर लेते हैं। बट उसको वहां से उठा के कैफे के इंटीरियर में इंक्लूड करना, आई थिंक इट्स अ मार्वेलस आइडिया। एंड वी बीइंग द इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर कंपनी, आई थिंक वी शुड take a note from you here so that we can also enhance the purpose of recycling things. अभी हम राजपुर रोड के इलाके में बैठे हुए हैं एंड यहाँ पे आई हैव नोटिस्ड देयर आर बिल्डिंग्स जो कि अभी अबैंडन हो चुके हैं। कोई रहता नहीं वहाँ पे, nobody is there to take care of those like buildings, houses. So is there something that the government is doing, or is there anything that
you as a person who is conserving our heritage is doing, or your team is doing to protect these buildings? अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही है, और एक ना हमारे पास कोई हेरिटेज लॉज हैं जिनको हम यूज कर सके इन बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। ज़्यादातर बिल्डिंग्स देहरादून में वही बची हुई हैं जो डिस्प्यूटेड है। पुरानी बिल्डिंग्स वही हैं जो फैमिली में डिस्प्यूट है, कोर्ट केस चल रहा है, तो बिल्डिंग तोड़ नहीं सकते। जब वो जैसे ही कोर्ट केस रिजॉल्व होता है, लोग तोड़ के उसको कमर्शियल बना लेते हैं या फ्लैट्स बना लेते हैं। तो उत्तराखंड नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेरिटेज लॉ टू प्रोटेक्ट दीज ओल्ड बिल्डिंग्स, अदरवाइज हमारे सारे टाउन्स का कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। You being a person who is deeply connected with this city, with this place, and how do you see this thing happening in and around you? It is a complete disaster. It's a disaster in the making. हम लोग like I will give you an example. कि ये तरला नागल में एक फॉरेस्ट पैच था। गवर्नमेंट ने उसको कहा कि हम सिटी पार्क बनाएंगे। Okay. और उसके बीच में से एक रिवरलेट भी बहती थी, और रिस्पना का ही पार्ट है वो नदी, तो आईटी पार्क के बिल्कुल साथ में। तो उन्होंने उस पूरे में कंक्रीट भर दिया है, और जो उसका जो नेचुरल सेटिंग थी, जो वाइल्ड लाइफ थी, वो कहाँ जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग एनक्रोच कर रहे हैं, और कोई हमारे पास जोनिंग रेगुलेशंस नहीं है, कोई हमारे पास मास्टर प्लान नहीं है इस शहर का कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो it's very unfortunate, and we can see the impact with climate change. We can see the impact of the rising of temperature rise. Rainfall बड़ी irregular हो गई है। जब होती है तो बिल्कुल आंधी तूफान ही आ जाता है, नहीं होती है तो बिल्कुल ही। हाँ, तो ये इनफैक्ट हमने लास्ट ईयर मसूरी में भी देखा, जो स्नोफॉल का कंडीशन था हुआ ही नहीं, बहुत ही हुआ ही नहीं एक्चुअली। सो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग एक्चुअली कि जब अभी आगे जो जनरेशन आएगी, जैसे जो पहले की जनरेशन थी, उनका कहना था कि राजपुर तक बर्फबारी होती थी, हमारे बचपन में पड़ती थी, बट हमें वो चीज कभी मिला ही नहीं, एंड कमिंग जनरेशन को वो मसूरी वाला भी नहीं मिलेगा। So, what are your views on interior designing and architecture? So, keeping it separately and connecting it with Dehradun, what are your views? So, किसी भी शहर का एक कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर हमें मेंटेन करना चाहिए as far as possible। देहरादून का कैरेक्टर था, ज़्यादातर अगर हम बिल्डिंग्स को देखें तो ऑफ कोर्स इन डिफरेंट पीरियड्स वी हैव हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। मुगल पीरियड में मुगल बिल्डिंग्स बनी, लेकिन ज़्यादातर बिल्डिंग्स अगर आप देहरादून की देखें तो वो एक कॉलोनियल पीरियड की बिल्डिंग्स हैं, और जो हमारा आर्किटेक्चर था वो स्टोन इनफिल एक स्टाइल था कि स्टोन के हम पिलर्स और प्लिंथ बनाते थे, और उसके बीच में घर होता था वो पूरा। हाँ, वो पूरा आर्किटेक्चर जिसको हम बोलते हैं कि स्टोन एंड ब्रिक दे वर यूज्ड। उसके बाद जब 1929 में एफआरआई बना तो उसने एक्सपोज्ड ब्रिक वर्क को इंट्रोड्यूस किया। तो बहुत सारी बिल्डिंग्स में, जैसे हमारी आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, जहाँ पे एक्सपोज्ड ब्रिक वर्क यूज हुआ। तो समहाउ वो कैरेक्टर हमको मेंटेन करना चाहिए, एक बेसिक कैरेक्टर, एंड व्हाटएवर वी डिजाइन वी शुड डिजाइन अराउंड इट। वो कहीं देखने को मिलता नहीं है। एग्जैक्टली। तो मेरा तो यही मानना है कि जो भी स्पेसेस हम बनाएं वो एस्थेटिक होनी चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है कि मतलब it should reflect something. It should reflect some thought process. It should reflect some kind of concern for the environment, but it should also be very pleasing and a happy spaces. So I have also came to know that been there done that is there, जो कि आपकी कम्युनिटी का मेन एक नाम है। सो वहाँ पे काफी सारे वॉक्स ऑर्गेनाइज होते हैं जी, एंड वी वुड लव टू ज्वाइन यू ऑन अ वॉक जहाँ पे हम आर्किटेक्चर देहरादून की एक्सप्लोर कर रहे हो, जैसे आपने मेंशन किया एफआरआई और आईएमए,
and a house is there in Dalanwala, Hmm. and it's called, I think, Shamshere, Yeah. and it is very fascinating to me. I Yeah, don't know yeah. about many of the people here, Hmm. but to me it is very fascinating. Yes. And definitely we as a team of interior designers and architects are looking forward to join you on a walk जहाँ पे हम एक तरीके से we would be gaining more of the knowledge kind of thing, जहाँ पे ये चीजें डिस्कस हो रही जी। हो आर्किटेक्चर के बारे में, एंड द ब्रिक वर्क एंड स्टोन वर्क दैट यू मेंशन, जहाँ पे हम इन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो वी आर लुकिंग अहेड. मोस्ट वेलकम, आप जरूर आइए. Thank you so much, sir. Thank You so much for your time, and we are looking ahead to have a better and good relationship with Cafe Latta and the city. And thank you so much. Thank you.